آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت پورے ملک میں اور بالخصوص پنجاب کے اندر جو سیلابی ریلے کی انٹینسٹی ہے، اور جہاں آپ اس وقت موجود ہیں، میرے ساتھ علیم خان صاحب ہیں، عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، پوری یہاں کی سول ایڈمنسٹریشن موجود ہے، پورا میڈیا موجود ہے، ریسکیو 1122 کے لوگ موجود ہیں، آرمڈ فورسز کے لوگ موجود ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نگرانی میں جس طرح جب سے یہ سیلاب کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس طرح ان کی نگرانی میں تمام ایڈمنسٹریشن، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے وہ ریسکیو 1122 کے ادارے ہوں، چاہے وہ سول ڈیفنس ہو، تمام لوگ اس وقت فیلڈ میں پچھلے 3 دن سے موجود ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہم ساگرہ کے مقام کے اوپر، اگر آپ پیچھے پانی اگر آپ پیچھے پانی کی طرف انٹینسٹی دیکھیں تو اس وقت تقریباً 2,197 کے قریب کیوسک پانی کی انٹینسٹی سیلابی ریلا یہاں شاہدرہ کے پل سے گزر رہا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے ساتھ جتنی آبادی آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے وہ تمام اس سیلابی ریلے سے پہلے ایویکویٹ کر لی گئی تھی۔ ریسکیو کی اس وقت جو 600 سے زائد کشتیاں پورے پنجاب کے اندر اس وقت ریسکیو آپریشن میں 1122 اپنے آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور اس وقت تمام سول ڈیفنس کی کشتیاں، ریسکیو 1122 کی کشتیاں، 115 کی لوگ جو ہیں اس وقت، اور آرم فورسز کے جتنے بھی چیزیں موبلائز کی گئی ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں۔ اتنا تاریخی سیلاب، انپریسیڈنٹڈ واٹر انٹینسٹی کے ساتھ تینوں جو چناب، راوی اور ستلج کے ریورز ہیں اس میں یہ سیلابی ریلے فلو کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تمام دریا ہیں ان کے تمام جو پانی کا راستہ ہے اس کے کر لیا گیا تھا۔ تقریباً 2.25 لاکھ آبادی محفوظ مقامات پر منتقل کی گئی، 2.25 لاکھ مویشی کو محفوظ مقامات کے اوپر منتقل کیا گیا، اور اسی آپریشن، اسی نگرانی، اسی ریڈینیس، اسی پریپیئرڈنیس کی وجہ سے میں افسوس کے ساتھ یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ 12 تقریباً ڈیتھس ہوئی ہیں، اور وہ بھی میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ پنجاب حکومت کے کسی بھی ادارے جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے ان کی غفلت کی وجہ سے یہ ڈیتھس نہیں ہوئی، لوگ جاں بحق نہیں ہوئے۔ اگر ریسکیو 1122 کو کال لیٹ آئی اور ملبے کے نیچے پہلے سے لوگ جو ہیں وہ دب گئے تو اس کی وجوہات ہیں، اور پھر دور دراز کے علاقوں میں کشتیوں کے ذریعے ریسکیو آپریشن جاری ہے، اور تمام ڈی سی، تمام اے سیز، تمام ایڈمنسٹریشن کی نگرانی اس وقت جو فلڈ وار روم ہے اس کے اندر لائیو ہو رہی ہے، تمام سیف سٹی جو کیمراز ہیں ان کے ذریعے ہو رہی ہے، تمام ویجیلنس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور تمام ایڈمنسٹریشن اپنے پورے پیرافرنیلیا کے ساتھ فیلڈ کے اندر موجود ہے۔ اور میں میڈیا کا بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ جس طرح رپورٹنگ کی گئی اور رپورٹنگ جاری ہے، ہم نے میڈیا سے بھی بہت زیادہ رہنمائی لیتے ہوئے ریسکیو کیے ہیں لوگوں کو، کیونکہ کچھ لوگوں کو 112 تک ایکسیس نہیں تھی جہاں میڈیا نے رپورٹ کیا۔ ابھی 6 سے 7 لوگ ملبے کے نیچے سے نکالے گئے ہیں، اور وہ بھی میڈیا نے رپورٹ کیا کیونکہ ان کی کال نہیں مل رہی تھی بیکاز آف سگنلز، لیکن اس کی وجہ سے ان کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ تو میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت پوری قوم کو ایک ایسی رپورٹنگ کی ضرورت ہے جو کہ تمام لوگوں کا ہاتھ بٹائے اور تمام لوگوں کی مدد کرے، چاہے وہ کمیونٹیز ہیں ان کی مدد کرے، گورنمنٹ کی مدد کرے، ان تمام اداروں کی مدد کرے، اور جو لوگ اس وقت فیلڈ میں ریسکیو آپریشنز میں لوگ ابھی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ ایڈمنسٹریشن، یہ ادارے، ریسکیو 112 کی ٹیمیں، 115 کی ٹیمیں 3 سے 4 دن تک سوئی نہیں ہیں، اور اپنے تمام لوگوں کو تمام ڈسٹرکٹس کے اندر اکراس پنجاب وہ اپنے تمام آپریشنز میں مصروف ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ابھی وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے نارووال کا، سیالکوٹ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ دورہ کیا ہے، اس میں انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے پوری بریفنگ لی ہے، کیونکہ جو اربن فلڈنگ کا فینومینا ہے اس کے اندر پوری جو مینجمنٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 8 ماہ پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اینٹی انکروچمنٹ کا آپریشن شروع کیا تھا،
नालों की सफाई का ऑपरेशन शुरू किया था। डीसिल्टिंग के 5 से 6 राउंड्स इस वक्त तक मुकम्मल हो गए हैं और जिसकी वजह से पंजाब जो है एक बहुत बड़े ख़तरे से इस तारीख़ी सैलाब में अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बच गया है। और यही वो इंतज़ामी मैनेजमेंट होती है जिसकी ज़रूरत होती है ऐसी किसी भी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से। तो मैं एक दफ़ा फिर तमाम रेस्क्यू टीम्स को जो फील्ड में मौजूद हैं उनको शाबाश देती हूँ, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मीडिया को शाबाश देती हूँ उनकी रिपोर्टिंग के ऊपर। यही एक कौम की रिफ्लेक्शन है कि तमाम अदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं अपनी हुकूमत का हाथ बटाएं, उनका बाजू बने और जिसकी वजह से हम आवाम को फ़ायदा दे सकें। अभी इस वक्त वज़ीर आला पंजाब भी उस दौरे से वापस आई हैं और वो भी मॉनिटरिंग रूम के अंदर मौजूद निगरानी कर रही हैं। मेरे साथ अलीम खान साहब जो कि यहाँ मौजूद हैं और 3 दिन से ये भी फील्ड के अंदर मौजूद हैं। हमारे MPAs, हमारे मिनिस्टर्स इस वक्त तमाम फील्ड के अंदर मौजूद हैं, उनके अपने अपने इलाकों में ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। रिलीफ़ का काम जारी है, एडमिनिस्ट्रेशन मुंतकिल जो जगह पे लोगों को पहुँचाया गया है महफूज जगह पे वहाँ खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। मवेशी की एक बहुत बड़ी तादाद, मैंने आपको पहले बताया कि तकरीबन 2 लाख मवेशी, जो एग्जैक्ट तादाद 1,78,000 है, उनको अपने मालिकों के साथ महफूज जगह के ऊपर मुंतकिल किया गया क्योंकि लोग जो हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, अपने घर नहीं छोड़ते, जो रिवर बेड्स के अंदर कम्युनिटीज़ रिज़ाइड करती हैं, तो उनके साथ मुंतकिल किया गया। मेरी आवाम से भी अपील है कि बराए मेहरबानी जहाँ से सैलाबी रेला गुज़र रहा है उसके करीब मत जाएं क्योंकि बहुत सी जो अमवात हैं वो सिर्फ जो आपकी केयरलेसनेस है उसकी वजह से होती है, गफलत की वजह से होती है। अपने बच्चों को दूर रखें, आबादी को दूर रखें। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, उनके साथ ताउन करें। आप प्लीज़ सेल्फ़ी के चक्कर में या तस्वीरों के चक्कर में या पानी को देखने की उसकी वजह से जो सैलाबी रेला है उसके करीब मत जाएं क्योंकि ये इस वक्त बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। पानी जो है उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्पीड और उसका जो लेवल है वो तीनों हाई अलर्ट के ऊपर हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप भी ताउन करें और इंशाअल्लाह हम इस आफत से मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह 3, 4, 5 दिन के मरहले में। और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हर जगह के ऊपर हदायत दे दी है, तखमीना लगाया जा रहा है नुकसान का, लोगों के घरों का, लोगों के मवेशियों का, जो नुकसान हुआ है उसको पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब ने कल ऐलान किया था, उसको पूरा करेगी। आप लोग प्लीज़ सब्र से, तहम्मुल से काम लें। इंशाल्लाह हम एक होकर, एक कौम बनकर सब लोग इस आफत का मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह आपकी गवर्नमेंट आपके साथ शाना बशाना खड़ी है, आपकी वज़ीर आला आपके साथ शाना बशाना खड़ी है और हर मौके के ऊपर हम आपके साथ हैं। किसी किस्म का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की पैनिक रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सब एक जुज़ियात से जुड़ी रिपोर्टिंग करें ताकि हम सब एक दूसरे की मदद कर सकें। मैं ज़रा अलीम खान साहब और अज़मा बुखारी साहब, अगर अलीम खान साहब आप अगर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो ख़ास तौर पे शाहजहाँ तशरीफ़ लाई, उन्होंने आके यहाँ के इंतज़ाम का जायज़ा लिया। मैं हुकूमत पंजाब का ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रोएक्टिव होकर वो अपना काम कर रही है और उसने बावजूद इसके कि ये अनप्रेसिडेंटेड सैलाब है और पंजाब में शायद इस तरह का सैलाब हमने अपनी होश में तो नहीं देखा। और ये जो रिवर रावी है, मैंने कभी इस तरह का रिवर रावी नहीं देखा। तो ये बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हो रहा है इस वक्त और जिसमें पंजाब हुकूमत जो अपना फ़ाल किरदार अदा कर रही है, मैं उनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। इसी के साथ मैं सारी कौम को कहना चाहता हूँ कि ये वक्त ऐसा है जिसमें आपने अपने सियासी जो आपकी अटैचमेंट है उससे बाला ताक होते हुए, उसको बाला ताक रखते हुए आप सब ने मिल के इसको इसके हल के लिए इसके लिए अपनी जो एफर्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करना है। इस वक्त कोई जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे CM KP हैं, उनका बहुत पॉजिटिव बयान आया कि हम पंजाब के अवाम के साथ हैं, हम पंजाब को सपोर्ट करेंगे। इसी तरह जो वज़ीर आला सिंध है उनका बयान आया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
इस वक्त ये मौका है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इकट्ठी हो। ये जो आफत आई हुई है इसमें जो लोग बेचारे बेघर हो रहे हैं, जिनकी अमलाक को नुकसान हो रहा है, उनकी मदद के लिए हम सारे इकट्ठे मिलकर उनका काम करें। इसके बाद जब ये हालात ठीक हो जाएंगे तो आप बेशक अपनी सियासत जारी रखिएगा, लेकिन ये वक्त नहीं है सियासत करने का। इसलिए जहाँ पे भी हुआ है, जहाँ नुकसान गिलगित में हुआ था, पंजाब हुकूमत ने, हम सब ने जो पंजाब से हैं, उन्होंने कहा था कि ये हमारा नुकसान है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि NHA की बुनियाद पे ये आपको क्या बता सकूँ कि जहाँ जहाँ पे भी सड़कों का नुकसान हुआ है, मवासलात जो हमारा इदारा है वो इंशाअल्लाह ताला वजारत इसको प्रायोरिटी के ऊपर हल करेगी। जहाँ जहाँ पे सड़कें जो है वो डिस्कनेक्ट हुई है उनको हम ठीक करेंगे, जहाँ जहाँ पुल बह गए हैं हम उनको ठीक करेंगे, और पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला जो हमारा कनेक्टिविटी है पूरे मुल्क की, इंशाअल्लाह ताला उसको हम बहाल रखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो सियालकोट और नारोवाल के दौरे से यहाँ अभी 10 मिनट में शाहदरा पहुँचेंगी। आप लोग यहीं रहें और वो यहाँ आपसे बात भी करेंगी और यहाँ का जायज़ा भी लेंगी। ये बताइएगा क्या जो रावी है इसकी जो कैपेसिटी है वो 2.5 लाख क्यूसिक तक जज्ब करने की है कि ये बर्दाश्त कर सकता है। कोई प्लान है हाजीपुर वाली साइड पर तोड़ने का? प्रेशर बनता है चूँकि हलीम खान साहब आपके साथ खड़े हैं, बात करनी पड़ रही है। जो पॉलिटिक्स है वो सोशल मीडिया पर ये हो रही है कि शायद चूँकि वो रिवर बेड पर जो सोसाइटीज़ हैं उनको बचाने के लिए पीछे से जो गरीबों की बस्तियाँ हैं, तो ये थोड़ा सा क्लियर देखिए, रिवर बेल्ट्स के ऊपर जो सोसाइटीज़ हैं और जो लोग रहते हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, वो कोई पाकिस्तान से अलग लोग नहीं हैं, उनके भी घर हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब अगर आप ये कहें कि वो किस शख्स की सोसाइटी है तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि उसको बचाए। गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है तमाम पाकिस्तान के शहरियों को बचाएं, जिस तरह भी कोशिश कर सकते हैं, और वही गवर्नमेंट कर रही है। इस वक्त इरिगेशन डिपार्टमेंट, इस वक्त जो वासा के लोग हैं, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेरे साथ DC साहब यहाँ खड़े हैं और ये 3 दिन से फील्ड में हैं। आप लोग कैमरों के साथ भी इनको देख रहे हैं कि इनके ACs, इनके DCs, कमिश्नर्स सब फील्ड में। तो हमारे लिए ये तफरीक करना कि हाउसिंग सोसाइटी किसकी है और किसकी नहीं है, हमारे लिए हर शहरी की जान, उसका माल, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है, और हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो इक़दाम करेंगे। जो भी एक्सपर्ट व्यू है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो फोकस है, जो मकसद है, वो पाकिस्तान के हर शहरी को इस आफत से बचाने, उनके माल को इससे, उसके मवेशी को, उनके रोज़गार को इससे बचाना है। पानी की सतह तो बढ़ गई है मैडम, आप कह रहे हैं कि आपके अदारे जो से हैं वो इक़दाम कर रहे हैं, मुस्बत इक़दाम कि जो पानी की सतह दिन के साथ साथ बढ़ रही हो। देखें, हमने पानी की सतह बढ़ने के साथ इक़दाम नहीं किए, हमने ये प्रिडिक्ट किया कि ये पानी की सतह बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह का रेला पीछे से आ रहा था तो हमने इवैक्यूएशन 3 दिन पहले शुरू कर दी थी। हमने महफूज मकामात पर मुंतकिली 4 दिन पहले शुरू कर दी थी। और मैंने आपको जैसे पहले कहा कि नालों की सफाई, उनकी डीसिल्टिंग, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो वज़ीर आला पंजाब का एक, आपको पता है कि एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो हमने आते ही हुकूमत में शुरू कर दिया था। तो जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तबाही से पंजाब बच गया, पाकिस्तान बच गया, पंजाब के लोग बच गए, और इसी स्पिरिट के साथ काम इस वक्त फील्ड में हो रहा है। के मकाम पे जहाँ एरिया से पानी इंटर होता है तो पहला जो अफासी बंद है वहाँ पे अभी तक कोई भी टीम नहीं पहुँची। जैसे आपने पहले कहा कि मीडिया के थ्रू नहीं पता चल रहा है, इसी वजह से इसको फर्स्ट। देखिए यसर, ये जो आपने बात की ये कल रिपोर्ट हुआ था, टीम पहुंचकर अभी तक तकरीबन 2500 लोगों को मुंतकिल भी कर चुकी है। और जो आपने अभी दोबारा बात की है, मैं दोबारा चेक करा लेती हूँ। आपकी मेहरबानी है कि आपने इसकी दोबारा लेकिन कल भी ये निशानदेही हुई थी तो उसके ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अभी आपने किया, मैं दोबारा इसको चेक करा लेती हूँ। अच्छा मैम, जस्टर से लेकर चूहू तक ये एक ही पॉकेट नजर आ रही है, क्या ऐसी की और पॉकेट्स भी होगी? ये जो पॉकेट्स है कहाँ तक एरिया कवर करेगी? जस्टर से लेकर चूहू तक ये देखें, अभी तो जो पानी का बहाव है वो, उसका जो रास्ता है वो एक लेंथ लंबी, और जो सबसे ज़्यादा अनप्रेसिडेंट बात है कि वो तीनों दरियाओं का फ्लो की इंटेंसिटी जो है कि वो तीनों दरिया चल रहे हैं इस वक्त सैलाबी रेलों के साथ। तो आप भी अल्लाह ताला से दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। मैनेजमेंट, हमने अपनी कसर कोई नहीं छोड़नी, जो हुकूमत है, आप लोग हैं, सबके साथ मिल के हमने कोई ऐसा गैप नहीं छोड़ना जिससे अल्लाह ना करे किसी किस्म का नुकसान हो। बाकी जो है अल्लाह ताला से रहम की दुआ की जा सकती है और अल्लाह ताला भी अपना करम करेगा। अच्छा मरियम साहब, ये बताइएगा, जो ये नहरों की मुखालफत करते थे, अब फ्लो ये सिंध में भी जाना है, आप वफाकी कैबिनेट का हिस्सा भी हैं, सूबों की
बात भी हो रही है तकसीम की, तो ये नहरों की जो मुखालफत करते हैं मैं सियासी बात नहीं कर रहा, ये इंसानी बात है। अब देखिए, मैंने एक आपको पहले इसका जवाब दिया, ये आज मौका नहीं है कंट्रोवर्शियल बातें करने का। देखें, आपकी कोशिश ही होती है कि कोई ना कोई बंदा कंट्रोवर्शियल बात करे ताकि आपकी खबर बने, पर खुदा के लिए इस मुल्क का भी ख्याल करें, इस कौम का भी ख्याल करें। अपने टिकरों के चक्कर में हमारा बेड़ा गर्क ना करे कौम का, ठीक है, कि आपका टिकट चल जाए, ठीक है। खुदा के लिए इस कौम को इकट्ठा हो लेने दें, किसी वक्त तो हो लेने दें। बाहर सैलाब आया हुआ है, आपको इस बात की बड़ी है कि किसी तरीके से कोई फुलझड़ी छूट जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।